हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे स्टोरेज क्लास इन सी। तो स्टोरेज क्लास क्या होता है? स्टोरेज क्लास इन सी आर यूज्ड टू डिटरमाइन द लाइफ टाइम विजिबिलिटी, मेमोरी लोकेशन एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल. There are four types of storage class: automatic storage class, external storage class, static storage class and register storage class. तो automatic storage class क्या है? Automatic variables are allocated memory automatically at runtime. The visibility of the automatic variables is limited to the block in which they are defined. The scope of automatic variable is limited to the block in which they are defined. The automatic variables are initialized to the garbage by default. The memory assigned to automatic variable gets freed upon exiting from the block. The keyword used for define automatic variables is auto. Every local variable is automatic is C by default. एक स्टोरेज क्लास वेरिएबल्स और फंक्शन का स्कोप और लाइफ टाइम डिफाइन करती है. बेसिकली एक कीवर्ड होता है जो कि वेरिएबल्स या फंक्शंस के डिक्लेरेशन से पहले यूज किया जाता है. ये कीवर्ड उस वेरिएबल या फंक्शन के काम करने के तरीकों को बदल देती है. ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास सी की एटो स्टोरेज क्लास सभी लोकल वेरिएबल्स के लिए डिफॉल्ट क्लास मानी जाती है. जब भी आप कोई लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और उसके साथ कोई स्टोरेज क्लास डिफाइन नहीं करते तो वह बाय डिफॉल्ट एटो स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है. इस तरह के वेरिएबल्स को ऑटोमेटिक वेरिएबल्स भी कहा जाता है. इन्हें दर्शाने के लिए चाहे आप तो एटो कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, आप एटो कीवर्ड को सिर्फ किसी फंक्शंस के अंदर ही यूज कर सकते हो. जब भी फंक्शंस कॉल होता है तो ये वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं और फंक्शंस के एग्जिट होने के साथ ही भी ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ये हमारा ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का एग्जाम्पल है. ऊपर डिफाइन किए गए वेरिएबल्स ही ऑटो स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है. स्टैटिक स्टोरेज क्लास. The variables defined as static specifier can hold their value between the multiple functions called. Static local variables are visible only to the functions or the block in which they are defined. A same static variable can be declared many times but can be assigned at the only one time. Default initial value of the static integral variables is 0, otherwise none. The visibility of the static global variables is limited to the file in which it has declared. The keyword used to define static variables is static. Okay. स्टैटिक स्टोरेज क्लास कंपाइलर को बताती है कि वेरिएबल प्रोग्राम के एंड तक कंसिस्टेंट रहेगा. यहाँ पर कंसिस्टेंट में मेरा मतलब कि वेरिएबल बार बार क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होगा. मान लीजिए आपने फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्रिएट किया है. जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये वेरिएबल क्रिएट होता है और फंक्शन के एंड होने के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाता है. यानी यदि आप फंक्शन को कॉल करें, उस वेरिएबल में कोई चेंजेस करें तो फंक्शन एग्जिट होने के बाद वो चेंजेस भी नहीं रहेंगे. जब आप दोबारा फंक्शन को कॉल करेंगे तो वेरिएबल उसकी इनिशियल वैल्यू के साथ क्रिएट होगा. लेकिन यदि आप स्टैटिक कीवर्ड को यूज करते हैं तो वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बार क्रिएट होगा और प्रोग्राम के एंड में डिस्ट्रॉय होगा. और जितनी भी बार आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे वो चेंजेस भी पूरे प्रोग्राम के दौरान होगी. रजिस्टर स्टोरेज क्लास. The variables defined as the register is called the memory into the CPU register, depending upon the size of the memory remaining in the CPU. We cannot differentiate the register variables that is we cannot use AND operator for the register variable. The access time of the register variables is faster than the automatic variables. The initial default value of the register local variables is 0. The register keyword is used for the variables which should be stored in the CPU register. However, it is compiler's choice whether or not the variables can be stored in the register. We can store pointers into the register, that is, the register can store the address of a variable. Static variable cannot be stored into the register since we cannot use more than one storage specifier for the same variable. रजिस्टर स्टोरेज क्लास ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज की जाती है जिन्हें आप रैम की जगह रजिस्टर में स्टोर करवाना चाहते हैं. अक्सर ऐसा फास्ट डेटा एक्सेस के लिए किया जाता है. एक रजिस्टर कंप्यूटर प्रोसेसर का पार्ट होता है जो कि स्मॉल डेटा को होल्ड करता है, लेकिन ये बहुत छोटी वैल्यू को ही होल्ड कर सकता है. ये रैम से कई गुना तेज होता है.
इसलिए अपने प्रोग्राम में आपको जहां भी तेज डेटा एक्सेस की रिक्वायरमेंट हो तो आप इस स्टोरेज क्लास को यूज कर सकते हैं। एक बात को अभी ध्यान रखनी चाहिए कि जरूरी नहीं कि वेरिएबल को रजिस्टर डिफाइन करने से ही वो रजिस्टर में सेव हो जाएगा। ये आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। External storage class. The external storage class is used to tell the compiler that the variable defined as external is declared with an external linkage elsewhere in the program. The variables declared as external are not allocated any memory. It is only declaration and intent to specify that the variables is declared elsewhere in the program. The default initial value of external integral type is 0, otherwise null. We can only initialize the external variable globally. That is, we cannot initialize the external variable within any block or method. An external variable can be declared many times but can be initialized at once only. If a variable is declared as external, then the compiler searches for the variables to be initialized somewhere in the program, which may be external or static. If it is not, then the compiler will show an error. कई बार ऐसा होता है कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो आपको एक से अधिक प्रोग्राम फाइल्स को हैंडल करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में एक्सटर्नल स्टोरेज कार्ड बहुत ही हेल्पफुल होती है। मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम फाइल में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। ये वेरिएबल एक ग्लोबल वेरिएबल है। आप इस वेरिएबल को इसी प्रोजेक्ट की किसी दूसरी प्रोग्राम फाइल में यूज करना चाहते हैं तो आप एक्सटर्नल कीवर्ड यूज कर सकते हैं। बेसिकली एक्सटर्नल कीवर्ड कंपाइलर को बताता है कि ये वेरिएबल पहले किसी क्लास में क्रिएट किया जा चुका है और आप इसे इस प्रोग्राम में फाइल में यूज करने वाले हैं। एक कीवर्ड पहले से क्रिएट किए गई किसी वेरिएबल या फंक्शन का रेफरेंस देता है। उसके बाद हम देखेंगे operators. An operators is simplify or simple. An operator is simply a symbol that is used to perform operations. There can be many types of operation like arithmetic, logical, bitwise, etc. There are following types of operator to perform different types of operations in C. Arithmetic operator, relational operator, logical operator, bitwise operator, ternary or conditional operator, assignment operator. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैरी आउट फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन सी आर एज फॉलो। अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे कि हमारे मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स में हम परफॉर्म करेंगे। Addition operator is plus operator. The addition operator adds two operands together. It has the following syntax. Result equal to operand 1 plus operand 2. इसमें हम दो वैल्यू के एडिशन कर सकते हैं। हमने एक वेरिएबल लिए इंटीजर a इक्वल टू 5, इंटीजर b इक्वल टू 3 और इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू a प्लस बी, मतलब हमें 5 प्लस 3 का रिजल्ट चाहिए, इसलिए हमने वो एक वेरिएबल ले लिया। Subtraction operator. The second operator is subtracted from the first operand by the subtraction operator. Syntax, it has the following syntax. Result equal to operand 1 minus operand 2. इंटीजर a इक्वल टू 8, इंटीजर b इक्वल टू 3, रिजल्ट में हम a माइनस b, मतलब हमने यहाँ सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर परफॉर्म किया है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, द मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई द टू ऑपरेंड्स। इट हैज द फॉलोइंग सिंटैक्स, ऑपरेंड 1 इनटू ऑपरेंड 2। सेम ही है, हमने प्लस माइनस देखा है, वैसे ही ये भी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है। यहाँ पे हम 4 इंटू 5 करेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर में हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मॉड्यूलस ऑपरेटर, द मॉड्यूलस ऑपरेटर डिटरमाइंस रिमाइंडर द डिवीजन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। हम यहाँ पे सिंपली एडिशन का प्रोग्राम देखते हैं।
डॉट सी से हम सेव करेंगे। तो हमारा ये एडिशन का प्रोग्राम रन हो चुका है। 100 प्लस 50 इक्वल टू 150 इस आंसर आ गए हैं। यहीं पे हम चेंजेस करेंगे, कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस करेंगे, हमारा आंसर 50 आ जाएगा। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर। Assignment operator. This is the simplest assign operator. This operator is used to assign the value on the right to the variable on the left. मतलब each equal to साइन होता है, वो हमारे पहले वेरिएबल के बाद में आता है। तो हमें इस कैसे परफॉर्म करते हैं, अभी देखो ए प्लस इक्वल टू बी है, तो ये कैसे राइट करेंगे हम, ए इक्वल टू ए प्लस बी। माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस इक्वल टू होगा तो हम ए इक्वल टू ए माइनस बी ऐसा करेंगे। इंटू इक्वल टू, तो ए इक्वल टू ए इंटू बी। Relational operator. There are the total 6 relational operators in C language. There are equal to operator, not equal to operator, greater than operator, less than operator, greater than or equal to operator, less than or equal to operator. तो हमें कभी यूज करते हैं, तो हमें हमारे दो वैल्यू में कंडीशन चेक करनी होगी, तो हमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। तब तो हम इक्वल टू ऑपरेटर कब यूज करेंगे, द सी इक्वल टू ऑपरेटर। The C equal to operator is a relational operator that is used to check whether the two given operands are equal or not. मतलब 5 equal to 5, मतलब हमें 5 चेक करना है, मतलब दोनों ही इक्वल है, तब हम इक्वल टू साइन परफॉर्म करते हैं। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर मतलब एक वैल्यू हमारी 5 है और एक वैल्यू 3 है, मतलब ये दोनों सेम नहीं है, तब हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं। ग्रेटर देन ऑपरेटर कब यूज करते हैं हम,
हमें 5 greater than 3 चेक करना होगा तो हम ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज करते हैं। लेस देन तब यूज करते हैं जब एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से लेस होगी, तब हम लेस ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं। वैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं। लेस देन और इक्वल टू होगा तो लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर use करते हैं। Bitwise operator in C. In C, the following six operators are bitwise operators, also known as bit operator, as they work at the bit level. They are used to perform bitwise operation in C. Bitwise operator मतलब 0 और 1, मतलब ये बाइनरी फॉर्म में परफॉर्म होते हैं। The AND bitwise operator in C takes two numbers as operand and does not and on every bit of the two numbers. The result of AND is 1 only if both bits are 1. The bitwise OR in C takes two numbers as operands and does OR on every bit of two numbers. The result of OR is 1 if any of the two bits is 1. The bitwise XOR in C takes two numbers as operands and does XOR on every bit of two numbers. The result of XOR is 1 if two bits are different. The left shifts the C takes two numbers. The left shifts the bits of the first operand and second operand decide the number of place to shift. The right shifts the in C takes two numbers. Right shifts the bits of the first operand and second operand decide the number of place to shift. The bitwise NOT in C takes one number and inverts all bits of it. तो यहाँ पे हम देखेंगे x और y, हमने 0 0 1 1 लिया है, 0 1 0 1 ऐसा लिया है। तो x एंड y में क्या होगा, जब भी 0 0 आएगा तो भी उसकी वैल्यू एंड ऑपरेटर में 0 होगी, 0 1 आ जाएगा तो 0 होगी, 1 0 आएगा तो 0 होगी और 1 1 आएगा तो 1 होगी। वैसे ही x और x नॉर में होता है। मतलब हमारे आउटपुट में बाइनरी मतलब वो 6 आंसर आ गया एडिशन का, हमारे एडिशन का 6 आंसर आ गया तो हमारा आउटपुट में 6 का बाइनरी नंबर प्रिंट होगा। Logical operator. The logical operator perform logical operations on boolean values and return either true one or false one for sorry true for one or false for zero. Here are the logical operators in Z. Logical operators and the logical and operator is true if both operands are true. Logical operator कब perform होता है, जब हमारे दोनों ट्रू आंसर ट्रू होगा तब ये लॉजिकल एंड हम यूज करते हैं। बोथ ऑपरेंड्स हमारे ट्रू हो गए तो हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं हम। मतलब अब देखेंगे इट हैज द फॉलोइंग सिंटैक्स, रिजल्ट इक्वल टू ऑपरेंड 1 एड ऑपरेटर ऑपरेंड 2। हमने यहाँ पे इंटीजर a इक्वल टू 5 लिखा है और इंटीजर b इक्वल टू 3 लिखा है और यहाँ पे हमने कंडीशन दी a ग्रेटर देन 3 एंड b लेस देन 5। तो a मतलब 5 ग्रेटर देन 3 तो ये आंसर ट्रू है और b लेस देन 5 मतलब 3 से लेस 5 है, तो हम यहाँ पे हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे। लॉजिकल और द लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ एट लीस्ट वन द ऑपरेंड इज ट्रू। मतलब दोनों कंडीशन हम देंगे, उसमें से एक कंडीशन हमारी ट्रू होगी तब हम लॉजिकल और ऑपरेटर यूज करते हैं। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर निगेट्स द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड्स। इट हैज द फॉलोइंग सिंटैक्स, result equal to not operand, example integer a equal to 5, integer result equal to not equal to a less than the 3, sorry a greater than 3. Ternary operator, we can use ternary operator in C to run one code when the condition is true and another code when the condition is false. For example, age not equal age greater than equal to 18, printf can out printf cannot can out sorry printf can out printf cannot out। मतलब हमारा एज हम 18 कंप्लीट होने के बाद करते हैं तो हमारी कंडीशन क्या है, जब उसका एज 18 से कम होगा तो वो कैन नॉट आउट ऐसा मैसेज प्रिंट करेगा, और 18 होगा और 18 से ज्यादा होगा तो प्रिंट में हम कैन आउट ऐसा मैसेज पास करेंगे। सिंटैक्स ऑफ टर्नरी ऑपरेटर, टेस्ट कंडीशन ternary operator expression 1 expression 2. The test condition is a boolean expression that results in either true or false. If the condition is true, expression 1 before the colon is executed,
false, expression 2 after the colon is executed. The ternary operator takes three operands, condition, expression 1 and expression 2. He is the name ternary operator. ये हमारा एग्जाम्पल है टर्नरी ऑपरेटर का. वही एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है एज 18. ओके, थैंक यू.